Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were discussing the chapter named The Signal 1. Let's continue the chapter. In the previous video, we learned something about the writer and also discussed some word meaning. Today I am going to start the chapter. All of you open your book and open page number 58. Previous day we have completed up to Semyon told him all. There is nowhere for me to go. I must hunt for work, sir. So as we read in the story, Semyon did not had any work to do, and now he was in search of. Hunt of work means search of work. Okay, let's begin. The station master looked at him. Okay. Okay. The station master looked at him and said, "Stay here for a while at the station. Where is your wife?" "My wife is at Kurs." So station master asked Semyon that please stay here for a while, and he also inquired about her wife, that where is she. So Semyon replied that she is at Kursk. Kursk is a place where he is living. "Well, bring your wife here. I'll give you a free pass for her. There is a position as a track walker open. I will speak to the chief on your behalf." So station master said to the Semyon that bring your wife here. He will provide the extra pass for bringing her wife, and there is a vacant position for track walker. So he will talk to the chief on his behalf and he will be provided the job. So dear students, हम क्या पढ़ रहे थे? सैम्यूल इवानोव जो थे वो अर्लियर क्या थे? असिस्टेंट थे, आर्मी ऑफिसर थे. अब क्योंकि उनकी हेल्थ पोर थी और वो अपनी वाइफ के साथ कर्क्स में रहते थे, एक बार वो इंजन पे राइड कर रहे थे. किसी तरह से उन्हें मौका मिला इंजन पे राइड करने का, तो उन्होंने एक स्टेशन मास्टर को देखा जिसका फेस उन्हें किसकी तरह लग रहा था? फैमिलियर लग रहा था, जिससे लग रहा था कि वो जानते पहचानते हैं. और वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं. और जो स्टेशन मास्टर थे वो कौन थे? सैम्योन के रेजिमेंट में ऑफिसर थे. तो वो जो स्टेशन मास्टर थे वो पूछते हैं, "यू आर इवानोव?" तो इवानोव रिप्लाई करते हैं, "यस योर एक्सीलेंसी." as he was officer of Ivanov, so he addressed him as excellency. "How do you come to be here?" उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए. तो वो बताते हैं कि वो उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए और वो काम की खोज में हैं. स्टेशन मास्टर उन्हें वहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं. उनकी वाइफ के बारे में पूछते हैं. तो इवानोव जो है वो रिप्लाई करते हैं कि उनकी वाइफ जो है कर्स्क में है. और स्टेशन मास्टर उनसे कहते हैं कि वो अपनी कुछ समय स्टेशन पे रुकें और अपनी वाइफ को लेकर के आएँ. और वहाँ पे ट्रैक वॉकर की जॉब जो है वो खाली है, तो वो बात करके वो जॉब मतलब अपने चीफ से वो बात करेंगे उनके बिहाफ पे उस जॉब के लिए. सो वेल ब्रिंग योर वाइफ, आई विल गिव यू. यस, वो उनको फ्री पास ऑफ़र करते हैं उनकी वाइफ को वहाँ बुलाने के लिए. "I shall be grateful to you, your excellency," replied Semyon. अब Semyon रिप्लाई करते हैं स्टेशन मास्टर को कि वो उनके लिए बहुत मतलब क्योंकि वो सर्च ऑफ जॉब में था, काम खोज रहे थे,
तो उनको वो काम भी मिल गया, प्लस उनको एक फ्री पासेस देते हैं वो उनकी वाइफ को बुलाने के लिए। तो वो बोलते हैं, इवानोव जो है वो रिप्लाई करते हैं कि वो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल रहेंगे, मीन्स थैंकफुल रहेंगे। Semyon stayed at the station, helped in the kitchen, kept the yard clean and swept the platform. और सैम्यून जो थे वो स्टेशन पे रुके, उन्होंने क्या काम किया वहाँ पे, किचन में हेल्प किया, यार्ड को क्लीन किया, प्लेटफॉर्म को साफ़ किया। Soon his wife arrived and Semyon went to his new hut. और जल्द ही उनकी वाइफ वहाँ पे पहुँचती हैं और वो अपने नए हट में जाते हैं, झोपड़े में। There was a little vegetable garden and some plugged land on either side of the railway embankment. रेलवे एम्बार्कमेंट के बोथ साइड पे कुछ प्लग्ड लैंड था, कुछ थोड़ा सा वेजिटेबल का गार्डन था। सैम्यून वॉज हैप्पी, आई कुड डू सम फार्मिंग हेयर थ्रू थॉट सैम्यून। तो सैम्यून जो है वो बहुत खुश होते हैं वो जगह देख करके, और वो सोचते हैं कि वो वहाँ पे कुछ फार्मिंग भी कर पाएंगे। Semyon was given all necessary stores, a green flag, a red flag, lanterns, a horn, hammer, screw wrench for the nuts, a crowbar, spade, broom, bolts and nails. As we have read earlier, that Semyon was appointed as track walker, and he was provided with all the necessary things required to a track walker, like green flag, red flag, lanterns, a horn, hammer. These all are the tools that a track walker requires while performing his duty. So these were the things that were provided by the authorities to the Semyon. And also with 2 books of regulation and a timetable of the train. 2 books related to the rules and regulation was also provided to Semyon, and a timetable of train was also provided to Semyon. 2 hours before a train was due, he would go over his section, sit on the bench outside his hut, and look and listen whether the rails were trembling and rumble of the train could be heard. So 2 hours before, whenever the due time of before the due time of train, 2 hours before the due time of train, he used to come and sit outside his hut, and he tried to and listen the trembling sound. That means he wanted to feel the vibration on the land, and he saw for rumble of the train that could be heard. He would go over the track twice a day. He used to go on the track twice a day, examine and tighten up nuts here and there, and he always used to examine the nuts and tighten them up, look at the water pipes, etc., and then go home. There was only one drawback. He always had to get the inspector's permission for the least little thing he wanted to do. So students, हमने इसमें क्या पढ़ा? सैम्यून को हर वो ज़रूरी चीज़ दी गई जो उसे एज अ ट्रैक वॉकर नीडेड थी, जैसे कि ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, लैंटर्न्स, अ हॉर्न, हैमर, स्क्रू रेंच फॉर द नट्स, अ क्रोबार, स्पेड, ब्रूम, बोल्स एंड नेल्स। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें टूल्स थे जो कि एक ट्रैक वॉकर को चाहिए होते हैं उसका काम करने के लिए। और इन सारे टूल्स के साथ उन्हें 2 बुक्स दिए गए थे जो रेगुलेशन बुक्स थे। दैट मीन्स उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन थे जो कि एक ट्रैक वॉकर को फॉलो करने थे। साथ ही उन्हें एक टाइम टेबल दिया गया ट्रेन्स का, और सैम्यून को 2 बार ट्रैक्स के ऊपर जाना होता था। उनका जो एरिया था उसमें 2 बार जा कर के उन्हें चेक करना होता था, और जब भी 2 घंटे पहले जब भी कोई ट्रेन अराइव होने वाली थी तो 2 घंटे पहले वो आकर के अपने सेक्शन के बाहर बेंच आउटसाइड, उन्होंने अपने सेक्शन के पास बेंच लगा रखी थी अपने हट के बाहर, जिस पे आकर के वो बैठ जाते थे और वहाँ पे ट्रम्बलिंग साउंड सुनते थे ट्रेन का, और वो देखते थे कि जो रम्बलिंग साउंड होता है वो वहाँ पे आता है कि नहीं, और वो
ट्रेन का वेट करते थे। और जब वो 2 बार ट्रैक्स पे जाते थे तो उनका काम होता था कि जो नट बोल्ट्स हैं उनको चेक करना कि वो प्रॉपर्ली टाइटेड हैं कि नहीं। अगर नहीं होते तो वो उनको टाइट अप करते थे। और वाटर पाइप्स को चेक करते थे कि वो प्रॉपर हैं, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। और उसके बाद वो वापस घर चले जाते थे। और इस ड्यूटी को परफॉर्म करने में सिर्फ एक ही कमी उन्हें महसूस होती थी। वो क्या थी कि उन्हें हर छोटे काम के लिए अपने इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी होती थी। बिना इंस्पेक्टर के परमिशन के वो एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते थे। 2 months passed. It was summer, so there was no snow to clear away, and the trains on the lines were infrequent. अब 2 महीने बीत चुके थे, समर सीज़न आ गए थे, और बिकॉज इट वॉज समर देर वॉज नो स्नो टू क्लियर। और क्योंकि वो समर था तो गर्मियों में स्नोफॉल नहीं होता है, तो उन्हें ट्रैक पे कोई स्नो जो है क्लियर नहीं करनी होती थी, साफ़ नहीं करनी होती थी। और जो ट्रेन्स का टाइम था, लाइंस थी, वो भी इनफ्रीक्वेंट हो गई। दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन नहीं जाती थी। सैम्यूअल बिगन टू गेट एक्वाइंटेड विद हिज नेबर्स। और क्योंकि उन्हें टाइम मिल जाता था तो वो अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने लगे और उन्हें समय मिलने लगा जान पहचान करने का। One was a very old man who scarcely moved out of his hut. एक जो था वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था जो कि हार्डली अपने हट से बाहर आता था। The other, Wesley Stepnick, was a young man, thin but muscular and also a track walker like himself. और जो एक थे वो बहुत ही ओल्ड मैन थे जो कि हार्डली अपने हट से बाहर आते थे, और दूसरे जो थे वो क्या थे, उनका नाम था वेस्ले स्टेपनिक। और वो क्या करते थे, वो यंग मैन थे, बहुत ही पतली दुबली बॉडी थी उनकी, बट मस्कुलर बॉडी थी। और वो भी सैम्यूअल की तरह ट्रैक वॉकर थे। ही एंड सैम्यूअल मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लाइन मिडवे बिटवीन देयर हट्स। और वो फर्स्ट टाइम कब हम मिले थे, उनके हट्स के बीच में जो उनका ट्रैक था, तो उस ट्रैक पे मिडवे में, दैट मीन्स इन द बिटवीन ऑफ द midway of their huts. Okay. Good health to you, neighbor, and said Simeon to Wesley. Simeon ने वेस्ले से कहा कि good health to you, neighbor. That means आप सेहतमंद रहें पड़ोसी। How do you do? The neighbor replied and then made off. और उनके नेबर ने उनको रिप्लाई किया how do you do? आप कैसे हैं? और वो वहाँ से चले जाते हैं। मेड ऑफ मीन्स टू गेट अवे, सो वो वहाँ से चले जाते हैं। सैम्यूअल ऑफन टॉक्ड टू द डेज गॉन बाय बट वेस्ले फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट। और सैम्यूअल जो था वो अपने बीते हुए समय के बारे में अक्सर बातें करते थे, बट वेस्ले जो थे वो ज़्यादातर समय जो है शांत रहते थे। I have had no little sorrow in my day, Simeon would say. और सैम्यूअल कहते हैं कि उन्हें अपने बीते हुए समय पे कोई भी अफसोस नहीं है। दैट मीन्स कि सैम्यूअल को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। बट वॉट गॉड मे गिव so will it be, and perhaps said Wesley, it is waste of time for me to talk to you. और यहाँ सैम्यूअल वेस्ले बोलते हैं कि और क्या था जो गॉड हमें दे सकते थे। दैट मीन्स गॉड ने उन्हें जो भी दिया था उससे वो बहुत ही खुश थे। और एंड परहैप्स सेड वेस्ले बोलते हैं इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू। तो वेस्ले जो हैं वो सैम्यूअल को रिप्लाई करते हैं कि इन सब बारे में बात करना समय की बर्बादी करना है। एंड ही टर्न एंड वेंट ऑफ, और वो मुड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेबर सैम्यूअल कॉल्ड वाई डू यू लूज योर टेम्पर, बट हिज नेबर डिड नॉट टर्न अराउंड। और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सैम्यूअल जो है, वेस्ले जब जाने लगते हैं वहाँ से, तो सैम्यूअल बोलते हैं कि तुम नाराज़ क्यों हो गए। और इतना बोलने के बाद भी जो उनके नेबर होते हैं, दैट मीन्स वेस्ले जो होते हैं, वो
वापस से टर्न नहीं करते हैं और रुकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं. Semyon went home and said to his wife, Arina, something doesn't seem right about our neighbor. तो सैम्योन जो है वो, उनकी वाइफ का नाम होता है अरीना. तो सैम्योन अपनी वाइफ अरीना से कहते हैं कि उनके नेबर के साथ कुछ गलत है, कुछ ऐसा लगता है उन्हें कि उनके नेबर के साथ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है. द टू मैन मेट अगेन एंड डिस्कस द सेम टॉपिक. और दोनों आदमी फिर से मिले और सेम टॉपिक पे बात की. What sort of life is there for a poor man in a hut here or there? What pay do you get? Asked Wesley one day. और वो क्या बोलते हैं, सेम टॉपिक पे बात होती है. तो वहाँ पे क्या बात होती है कि एक गरीब आदमी की लाइफ क्या होती है जो उसे यहाँ वहाँ रहना पड़ता है. और वो पूछते हैं, वेस्ले जो हैं वो सैम्योन से पूछते हैं कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है. Not much, Wesley. 12 rubles. Rubles is a measuring unit of money. So here, Simon replied to Wesley that not much. He said that I do not get very much, but I get 12 rubles. So, सैम्योन जो है वेस्ले को बताते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, बट उन्हें 12 रूबल्स मिलते हैं. एंड आई 13.5 रूबल्स. और वेस्ले जो है सैम्योन को बताते हैं कि उन्हें 13.5 रूबल्स मिलते हैं. वाई बाय द रेगुलेशन द कंपनी शुड गिव अस 15 रूबल्स अ मंथ. और वो बोलते हैं कि कंपनी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें 15 रूबल पर मंथ मिलना चाहिए. हु डिसाइड्स दैट यू शुड हैव 12 रूबल्स और आई 13.5. Ask yourself, and you say a man can live on that. तो वेस्ले बोलते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि तुम्हें 12 रूबल्स मिलने चाहिए, मुझे 13.5 रूबल मिलने चाहिए, और तुम कहते हो कि व्यक्ति इस तरह से रह सकता. आई शैल नॉट स्टे हियर लॉन्ग, आई शैल गो समवेयर एनीवेयर. कहते हैं कि इतने कम पैसे में कोई कैसे रह सकता है, और मैं यहाँ और देर तक नहीं रुकूंगा, और मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा, कहीं भी. Okay students, hope you understood the story well. If you have any doubt in the story, you can call me and ask your problem, and we will discuss the remaining part of the story in the next video. Thank you and have a good day.